जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 558th episode of live analysis. So today we are a bit late, so apologies for that. uh, Quite a busy hectic schedule, but still today I had to come because today is a important day and we have to talk a lot about markets. So good evening, namaskar. एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइज दैट नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है हमारी दैट इज शेड्यूल ऑन May 7th and 8th, and this is my last batch in the foreseeable future. So if you are interested to learn from me, you can join this batch. You can WhatsApp, you can register, and once you are registered you will be added in the Telegram group for a period of 3 months. So all the details are given over here. You can WhatsApp and you can get more details and then you can register. And post 15th May, I don't think there will be any live session. It will be only for the Telegram group members. All right. So what is happening right now? So US market is down by 1.5%. Nasdaq has been badly thrashed, more than 2.5% down on the Nasdaq. So Nasdaq has got a good beating, and this was pretty much expected. Post the Elon Musk takeover of Twitter. So some definitive reaction was going to come. Now, uh, these markets, they are at a very crucial stage. Okay. Why crucial I'm saying? Because these markets are giving me mixed signals. What are these mixed signals? See, number one, the US market, the S&P 500, we had said that this was a major resistance from 4640, 4680, and it had to come down all the way till 4320, and it has exceeded that target. In fact, it has come almost back to the lows, right? Now, this area is very crucial for all the markets. If you check any chart, almost all these global equity markets, they have given up their recent gains and almost all of them are back to the pavilion. Okay? And few markets, they are almost threatening this bottom. Noticeably, the emerging market ETF, which is again down by 1.5%, it is almost very close to that previous bottom, and it's just a matter of time. It can pierce through that, may not sustain below that, but it has given a inverted V shape move in the last 1 month. And if you see all these European markets, the French market, I think tomorrow there will be bloodbath in the French market. German market again the back to the starting point. So what does it tells us, and what does it mean for Nifty as a market? Because just like last time, Nifty is holding up, right? Nifty is not giving up easily. So what are these mixed signals? See, mixed signals कुछ इस तरीके से हैं. Because the global markets, they are almost back to their March lows, and that translates to how much on Nifty? 15,500. So even if you consider say 16,000, Nifty is 1200 points above that, right? So the mixed signal is that if these markets are trading at their March lows, and if Nifty is almost 1200 points away from that low, more than 1200 points, then what will happen if Nifty also starts to correct? So that is point number one. Point number two is, since these markets are very close to their previous bottoms, and I don't think they are going to break below this. I think more or less they will, just flush out or just make a double bottom sort of a structure. And this sort of structure can trigger a very big rally, okay, a short covering rally in the coming weeks and coming months. Now, April has a very bullish seasonality, right? And generally, April is bullish for the equity markets, but April has been bearish. May is perceived to be very bearish for market, and we are heading into May at a double bottom sort of a structure. We are heading with a lot of lower levels and US dollar at the top. So can May be a surprise reversal for the markets, especially from 5th of May, this date I have given on Sunday, right? So on Sunday, I explained why I'm expecting these global markets to go down, right? Nifty also started to go down, but then it has bounced back again. And then
uh, by 5th of May there should be a significant bottom. The dollar should peak out, and then we should see a reversal where the dollar starts to come down and these markets start to go up. Now how far they will go up, that we will see. That may stage a very big rally also, that may stage just another rally towards the trend line resistance, possibly make another wedge sort of a structure going forward. वो हम बाद में देखेंगे. तो ये जो एक कंफ्यूजन है इस समय, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी, and we have to be extremely careful. Even if you are a bull, you have to be extremely careful, because as I said, Nifty is up by 1200 points bare minimum from the lows that these markets are trading. And if Nifty decides to crack, then Nifty, just like this last time, if you remember, all these markets, they came at their 200-day moving average almost in the month of January, while Nifty was trading at a higher level. So Nifty was showing resilient for long time, and then when these markets almost bottom out, Nifty was the last one to crack, and it cracked much more than expectation. Correct. So same thing is being repeated over here. So I said that we have to be very careful, both as a bear and as a bull, because of this conflict. If these markets decides to go up, then definitely that will help Nifty. So if you are a bear, you may get caught in a bear trap. If these markets try to hold for 3-4 days, and in those 3-4 days, if Nifty starts to decline, then Nifty can very easily fall towards 16,300 level, very easy, right? So both the parties needs to be extremely careful, and we are reaching a very inflection point for these markets. I think we have uh, undergone correction for almost a straight 6 months, and we are reaching an inflection point where I think some decisive action will be taken, some decisive action which started from here. That decisive point, both price and time, both they are coming. Okay, so we might end up making a significant bottom over here and start a surprise rally. Probably that may be a suckers rally, or what sort of rally it will be, we will see that time, but this has a good chance. On the other side, if suppose these levels break, then there will be a very you know a super duper sell off, very huge sell off, very huge in the terms that S&P 500 can very easily go towards these 3600 level, 3680. It may come near these levels. So this was your entire first wave, second pullback, and third in this form. So that is why I said we have to be very crucial. On the face of it, I still think these bottoms are good for US market. Okay, and all these markets are undergoing a proper correction, a very expected correction. It's only Nifty and Bank Nifty which is dodging for last one session, I would say. Overall, अगर Nifty Bank Nifty भी हमारे नीचे के लेवल्स पे आ जाए, तो देयर विल बी a synchronized movement, and then whichever side these markets move, there will be a very synchronized movement on that side. There won't be any confusion, basically. That is what I'm trying to say. So let's be careful out there. Let's be very careful, because inflection point यहाँ पे आ रहा है. So that's the current update and the explanation which I wanted to give you guys, because context को समझना बहुत जरूरी है. We are approaching a pinnacle point in terms of this last 6 month cycle. So please be extremely careful. Again, I'm repeating. Now, let us see how the emerging market ETF is doing. So emerging market ETF is again back to the March lows. In fact, it's almost there. So this is again very bad sign. Lot of bearishness is there. And again, if Nifty decides to take a cue from this, it can very easily fall 1000 to 1500 points very easily. Bank Nifty can come very easily to 34,000 levels. So we have to be very careful. Now let's take a look at the currencies, because US dollar is again up by almost a 0.25%, and US dollar has tested the next set of resistance zone on the monthly charts, which I mentioned yesterday and day before yesterday. So on the left hand side here, we have this monthly resistance, the long term resistance, and US dollar has again shot up today, and it is reaching that level. Okay, that is the very critical Fibonacci confluence level, and this is where the US dollar must stop. In fact, this is what all the equity markets are watching, because if US dollar doesn't stop here,
that will trigger a fresh wave of sell off, and S&P 500 जो है जो आपके यूरोपियन मार्केट्स हैं, they will all plunge back to the March lows, and US market will break towards new lows, and that will trigger again a very big sell off in the Nifty and Bank Nifty market. So everything, as I said कि अगला 2-4 दिन जो है बहुत ही crucial है, so be very careful. Now, today the British pound has again plunged, and there is no support on this currency right now. It has given a very big breakdown, and I think there will be further pain. I think another 1% there is going to be pain, and once it makes a bottom, then only I think there will be some sort of trend reversal in this currency. So that is again not good for the GBP INR traders, because इसके bearishness की वजह से कल expiry भी है. So कल NSE Forex futures पे और भी lower levels, I think 50 to 70 पैसे down आपको कल जो है ये देखने को मिल सकता है. So I will watch GBP INR at 1.25 1.24 somewhere here. So there is still scope for it to fall for almost 1%. So let it come here, and then we will start to accumulate again fresh. Now, USD JPY, that is showing some weakness despite the US dollar strength for the first time in long, after a long time. It is showing a trend reversal. So that is something which is good, and that is something good for the JPY pair. Now, very quickly, let me just give the levels for Forex market. So USD INR, we are bullish, और इसमें कल के ही लेवल्स हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाई ऑन द USD INR despite RBI intervention. So this should happen anytime, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. Euro INR, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फिलहाल इस वीक के लिए बेरिश है, below 83.2, and I think it has come almost at the level of 82. GBP INR, it is bearish below 99.25, एंड फर्स्ट एक टारगेट तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट साइड में नहीं है. 98.25 था. आई थिंक इट इज गोइंग 96.6 ऑल्सो, कंसिडरिंग टुडे इट इज अगेन डाउन. सो एट 96.6 मे बी एक्सपायरी के बाद जो है इसको हम फ्रेश देखेंगे, because this will be a very hot currency from the month of May. So I'll be keenly watching this currency. JPY INR, I think trend reversal is in place, and I think that 59.5 जो bottom बना था, that is I think more or less the 59.60, that is the bottom for medium term in JPY INR, and I think it has started its rally towards that 63.25 main level. First इसका जो एक रेजिस्टेंस में कहूंगा या एक पिवोटल लेवल होगा, वो होगा 61.25. सो आई विल बी इंटरेस्टेड अगेन इन दीज टू पेयर्स, जिसमें से JPY INR में मैं एकदम इमीडिएटली इंटरेस्ट हूं अब, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई विल बी अगेन इंटरेस्टेड इन दीज करेंसी. सो जनरली मार्च और अप्रैल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है करेंसी मार्केट के लिए. सो वी आर एंडिंग द अप्रैल एक्सपायरी, so from May again we will be back to the currency trading on daily basis. So ये फिलहाल एक अपडेट है, ये फिलहाल एक व्यू है. Now let us talk about the commodities market. So gold is up by 200 points, silver is flat. So gold silver में इस समय कोई ट्रेड नहीं है. Natural gas और crude की बात करते हैं. Natural gas is surprised because yesterday it opened gap down, and there was a big gap down, and then it has shot up very quickly. So basically there was a trade at 490 sort of a level, but it suddenly jumped up. So यहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं पाए. Why there was a trade? Because this was the previous high. So this was going to be a good level to buy, but it happened very fast. So there was no trade. Now in natural gas, I think for the time being it will be difficult to trade. So I think I will avoid this for some time. Crude oil की बात करते हैं. So crude oil is again very tricky, sometimes acting very bearish, sometimes acting again very bullish. So best इसको ignore ही मैं इस समय करना पसंद करूंगा, जब तक कि कोई एक ट्रेंड की क्लैरिटी ना हो. Okay, again you see yesterday it broke this range, so it should have been bearish, but today again it has shot up, राइट. सो इसलिए इसमें मुझे फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर लेवल की मैं बात करूं तो अगेन 8000 इज गोइंग टू बी अ बैरियर फॉर क्रूड ऑयल मार्केट. ठीक है. सो कमोडिटीज में ज्यादा कुछ है नहीं, सो लेट अस स्किप दैट पार्ट. एंड बिटकॉइन इथेरियम अगेन कोई क्लैरिटी नहीं है, लॉट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज हैपनिंग. सो आई विल वेट फॉर 5th of May and then we will decide. Overall, every asset class is approaching a inflection point जहाँ पे major trend reversal होने वाला है in the next few days. So it's better to watch and let
a couple of more days pass by and then we will decide. So let's talk about Nifty and Bank Nifty कि आज इसमें क्या हुआ और कल की क्या एक्सपेक्टेशन है. सी टुडे मार्केट ओपन विद अ गैप अप, और कल मैंने जो कहा था कि अगर आज गैप अप हुआ ओके तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, जो पेंडिंग गैप्स है उसको मार्केट जो है फिल करने की पूरी कोशिश करेगा एंड पॉसिबली इट कैन गो टिल 17,290 ऑल्सो. नाउ टुडे देयर वाज नो ट्रेड, बेसिकली आज कोई ट्रेड ही नहीं था निफ्टी में, बिकॉज ये गैप अप खुलने के बाद ही इट कंप्लीटेड दिस वन टारगेट, सो देयर वाज नो ट्रेड बेसिकली. या तो फिर इसका वेट करें कि ये गैप फिलिंग पे आए, ओवर देयर वी कैन बाय फॉर हायर टारगेट्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो मॉर्निंग विद इन 1 आवर यू विल कम टू नो व्हाट्स द टेक्सचर ऑफ द मार्केट. सो सुबह मैं समझ गया था कि कुछ है नहीं आज इंडेक्स में, सो आई डिडंट एडवाइस एनीथिंग. निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड था, वो भी बहुत छोटा ही था, लाइक 150-200 पॉइंट के लिए, दैट्स इट. नाउ अब हम बात करते हैं कि कल की सिचुएशन के बारे में कि कल क्या होना चाहिए एंड how's the Nifty looking right now. See, overall Nifty is still bearish. Nifty is firmly bearish right now, and I don't see Nifty reversing anytime on the higher side. And especially आज का जो global cues है, तो मुझे लग रहा है कि ये कल again there will be a big gap down and a lower levels to come. सो ये जो चार्ट है इस समय, इसमें एक ही सिंपल चीज़ है, दैट टिल इट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस लाइन, एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा. जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आ जाएगा पॉसिबली देन वी कैन कॉल फॉर सम ट्रेंड रिवर्सल. सो निफ्टी इज़ बेरिश राइट नाउ, एंड एज आई एक्सप्लेन कि हमारा निफ्टी जो है इट इज़ होल्डिंग अप, showing lot of resilience, but if it breaks 16,880, 16,900 level, then you can see there are no supports. The first support that I could see is 16,300 level. There is a unfilled gap over there, so 16,300 के पहले कोई भी support नहीं है. Okay, that is the next support. सो दैट इज वाई प्लीज बी कॉशियस. अब सीधे कल की बात करते हैं कि कल के क्या लेवल्स होंगे. सी टुमारो सेशन इट्स वेरी डाइसी, इट्स वेरी डाइसी बिकॉज we are neither at support of a big range nor at resistance. We are at the center. Plus, given the today's global cues, tomorrow if market opens big gap down, then again there will be a big problem in creating fresh short. So I think it's going to be very difficult to trade index for the next 1 day or at least 2 days. Still, we गो विद अ प्लान एंड लेट अस सी, अगर हमें कुछ ट्रेड मिलेगा तो हम फिर ट्रेड करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द ट्रेंड लाइन, द एक्चुअल ट्रेंड लाइन drawn from the top, connected with this. So we have very nice 3 touch points, and possibly tomorrow also it will react on the lower side, confirming the 4th point. So अब कल का मॉब लेवल क्या होगा हम उस पर पहले ध्यान देते हैं. So tomorrow's session, the make or break level will be 17,130. This is the Nifty spot, 17,130, the level before which the last spike came. Okay. Now below this level it's definitely bearish, and the first target will be to hit 16,985, and second target 16,920, third target 16,800, and thereafter, right, if it breaks 16,800 then it's all open till 16,666. Okay, keep this target in mind. Now above mob level it is definitely bullish. ठीक है, तो 17,130 के ऊपर ये बुलिश है, एंड आई थिंक इसको 17,400 टेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,465. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियोज कि कल सपोज मार्केट गैप अप खुलता है. अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो दो चीजें होंगी. नंबर वन, वी विल डेफिनेटली फिल अप 17,425, ये जो पेंडिंग गैप है. Okay, so upon filling up this gap, 17,410, 17,450, this area there is yet another pending gap. So there are two gaps. Okay, so it will try to fill up, because these are very close, it will try to fill up this, it will try to fill up this. So roughly 17,450, 460, somewhere here. Be very very alert, be very very alert, because from there market should crack. Okay, सो इस लेवल पे ध्यान देना. यहाँ से जो है
मैं शॉर्टिंग भी सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नियर दिस लेवल, ओनली 100 पॉइंट स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के ट्राई टू शॉर्ट. इफ दिस वर्क्स यू विल गेट अ बम्पर रिटर्न from 17,450 to 17,120 till the mob level. It should come down like a waterfall. ठीक है, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, which it will, then all the way till 16,929. So it will end up going like this. ठीक है, जैसे यहाँ पे था, it will end up going like this, sudden, swift, sharp, and without any warning, something like this. Okay, something like this. सो इस चीज का ध्यान यहाँ पे हमें देना है. सेकेंड सिनेरियो, इफ देर इज अ गैप डाउन ओपनिंग बिलो द मॉब लेवल, और इफ देर इज अ गैप डाउन ओपनिंग बिलो टूडेज लो, देन इट्स बेरिश एंड स्लोली स्टेडीली इट विल ट्राई टू गो अप. ओके, एंड बस उसमें एक लेवल हमें जो है थोड़ा ध्यान देना है कि 16,920, 930 इन लेवल्स पे ध्यान देना कि इसके अंदर ये वापस ना आए, बिकॉज दैट विल बी अ साइन दैट इट इज taking support somewhere here, and it is creating a bear trap, it is creating a bear trap for the late sellers. So बस इस लेवल का ध्यान देना है कि 16,920 के नीचे ही ये सस्टेन करे, इसके अंदर आता है तो एक बार आप शॉर्ट्स को कट कर देना. ओके, एंड देन सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज ये बेयर ट्रैप बनाने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, सो दीज आर द सिनेरियोज, दीज आर द लेवल्स. लुकिंग एट ग्लोबल क्यूज, मोस्टली तो गैप डाउन वगैरह ही होगा. ओके, सो अगर जिन्होंने शॉर्ट किया है या कोई पहले का शॉर्ट है तो उसको आप बुकिंग कीजिए, उसको आप देखिए. 16,920 के नीचे अगर ये टिकता है तो वाटरफॉल डिक्लाइन होना चाहिए. 16,800, 16,600, दीज लेवल शुड डेफिनेटली कम. ठीक है, बिकॉज वो मिनिमम टारगेट है इस डाउन मूव का. ठीक है, पैनिक में यहाँ पे इसने एक टारगेट कंप्लीट किया था 16,800 का, पर इट वाज जस्ट इन पैनिक. ठीक है, so I think there should be one more attempt. So that's the holistic explanation of Nifty for tomorrow's session. Now let's talk about Bank Nifty. So Bank Nifty today again there was a gap up opening, but at resistance मैंने इसे again top पे जो है short call दिया था, but ज़्यादा कुछ decline हुआ नहीं आज intraday, time भी नहीं था उतना. But for tomorrow's session we are bearish. So again, what will be level? The level will be same. It will be 36,000. Today's level 36,400, 500. So the make or break level for tomorrow's session will be 36,000 से 500. Basically आज का जो आप कैंडल देख सकते हो ये हमारा एक स्टॉप लॉस होगा फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टिंग इन बैंक निफ्टी. आज का कैंडल हाई आपका जो है स्टॉप लॉस है. ठीक है, एंड ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट क्या होगा हमारा 35,800, 35,800. ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल, बिकॉज अगर ये टूटा 35,800, 35,000, यस 35,800 वगैरह अगर टूटा तो सीधे फिर हम 35,000. ठीक है, which I'm expecting Bank Nifty to actually flush out this level once, because यहाँ पे मैंने मार्क भी करके रखा है 29th April तक I'm expecting this level to come. So let's see. Okay, so now I think bears are yes in solid position. They just need one trip on the lower side to bring Bank Nifty towards 35,800 and 35,000 level. ठीक है, so कल के लिए बस इतना ही. निफ्टी बैंक निफ्टी में याद रखिए 36,500 आपका जो है मॉब लेवल है, इसके नीचे मार्केट जो है बेरिश है, और 36,500 के ऊपर जो है ना प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि 36,500 से लेके 36,800 ये जो जोन है ना ये बहुत ट्रिकी है बैंक निफ्टी के लिए. ये यहाँ पे इतना सा जोन, बिकॉज दैट इज वेयर बैड थिंग्स कैन हैपन. यहाँ पे ट्राइंगल एक है, जैसे वेव 2 का ट्राइंगल है. सो ये जोन में अधिक बुलिश नहीं होना है, यहाँ पे वॉच फॉर वीकनेस. ठीक है, एंड यू माइट एंड अप गेटिंग 1000 पॉइंट्स लाइक दिस 36,800 से 35,800. ठीक है, so that's all for tomorrow's session. Very quickly we can take some stock queries, not much because today we started the session pretty late. As I speak, आपकी US market जो है I think it is cracking towards new lows. I mean yesterday का जो बॉटम है इसको ये ब्रेक कर रहा है इस समय. चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय लोगों को गाइडेंस की. एक बार मैं वापस से याद दिला देता हूँ, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन, टू गेट एसोसिएटेड विद अस, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल वाइंड अप द प्रोसेस. चलिए ओके, एंड प्लीज आस्क ओनली वन क्वेरी पर पर्सन, नहीं तो लोग
बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, मैंने परसों ही कहा था फॉल के पहले भी कि इसे प्रॉफिट बुकिंग अब 2840 जा सकता है, बट डोंट चेज। ओके, नाउ सी टुमारो, टुमारो अगर रिलायंस जो है ना 2800 के ऊपर अगर गैप अप करता है, अगर कल ये गैप अप करता है और आपके पास इसके शेयर हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा ट्रेल कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन ट्रेल टू 2755 और जस्ट बुक इट। ठीक है, यू कैन बुक इट। ये फेयर लेवल्स हैं बुक करने के लिए। हमने रिलायंस जो है बहुत नीचे से सजेस्ट किया है, सो इट्स इन वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, सो नो इश्यूज। नेक्स्ट स्टॉक है एलेक्स, ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, okay, so this stock right now is bearish. I think stock is going towards 380 390। इस समय ये स्टॉक बेरिश है। एशियन पेंट, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स एंड देयर वाज वन मोर, या सो एशियन पेंट अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है बॉस, यहाँ से जो है निकल जाओ। ठीक है, एनी टाइम इट कैन ड्रॉप एंड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट तो ये अच्छी बात होगी फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर इमीडिएट trade, but for future it will be good thing because it will show that it has negotiated with the resistances, so any dip that comes we will try to buy for higher targets like this। but अगर अभी आप नहीं निकलते हो और ये रेजिस्टेंस अगर पहले की तरह काम कर गए तो क्या होगा कि फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, और एशियन पेंट्स में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेवल चाहिए तो दैट लेवल इज अराउंड 2800 टू 2850। ये लेवल आप नोट कर सकते हो। कभी एक पैनिक में अगर यहाँ मुझे मिला एशियन पेंट तो मैं डेफिनेटली बाय करना पसंद करूंगा। दैट विल बी अ वेरी वेरी फैंटास्टिक लेवल। 2800 यानी 2750 से 2850, 2800 एक बॉल पार्क फिगर है एशियन पेंट में फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट नाउ इट्स एट रेजिस्टेंस, वन शुड एग्जिट। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन है एशियन पेंट का। नेक्स्ट क्वेरी, आईटीसी फ्यूचर, आईटीसी फ्यूचर पे बॉस मैं लॉन्ग हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है 245। आईटीसी में 210 से बाय करा रहा हूँ, पहला टारगेट था 280, 280 हो चुका है, हमने जो है बाय करके रखा है। वेरी सुन आईटीसी शुड सरप्राइज यू एट 320 लेवल्स। एफएनओ वगैरह में किया है तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस देख लेना, मैं कैश मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सो हमने 259 260 में बाई किया, 245 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 300 320, दो टारगेट्स है हमारे। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोइंग गुड। चार्ट मुझे बड़ा ही एवरेज किस्म का लग रहा है, कोई खास नहीं है, जस्ट लुकिंग लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड स्टार। तो इसमें देखो जहां ठीक लगे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेरी है सीमेंस इंडिया लिमिटेड। सीमेंस इंडिया लिमिटेड, लेट मी सी, देखो जर्मनी, राइट, हाँ जर्मनी के बारे में भी एक अपडेट है। सीमेंस देखिए इस समय दोस्त बेरिश है, बेरिश मतलब कि एनी टाइम इट कैन क्रैक। ठीक है, 2200 पे बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, सो इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स आई थिंक यू शुड ट्रेल मैक्सिमम टू 2150। इफ बाय दैट टाइम the indices they hold up, they don't crack, this will be saved and one more round of up move you might end up getting। ठीक है, सो इसमें इस समय जो है आप ट्रेल कर सकते हैं 2170 पे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपका ये स्टॉप लॉस ना हिट हो। ठीक है, आईटीसी 259 बाई 269 थोड़ी, 259, 259.60 पे बाय है। एच डी एफ सी लाइफ, एल एन टी फाइनेंस, बहुत सारी स्टॉक क्वेरीज हैं, एल एन टी, यूपीएल, एस बी आई कार्ड, इतने सारे स्टॉक क्वेरीज। सुदीप घोष, सुभादीप घोष, आपकी क्वेरी मैंने ले लिया। जिनकी क्वेरीज हो चुकी है मैं ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज आस्क ओनली वन क्वेरी या फिर मैं सेशन को अभी टर्मिनेट करता हूँ। मल्टीपल क्वेरीज है तो 5 लाख का सुपर चैट कर दो, 5 लाख से कम नहीं। एच डी एफ सी लाइफ, देखो एच डी एफ सी लाइफ इस समय बेरिश है यार, इस समय क्या एच डी एफ सी में पिछले 10 महीने से कह रहा हूँ कि बेरिश है। ठीक है, अच्छा एक वापस एक चीज बताता हूँ, हाउ टू स्पॉट की प्रमोटर भाग रहा है स्टॉक छोड़ के, ट्रेनिंग की चीज है बट अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज यू हैव अ रेंज, इस तरीके का आपके पास एक रेंज है। ठीक है, और एक स्टेलर रैली की शुरुआत होती है और एक बड़ा सा छलांग लगा देता है स्टॉक और वॉल्यूम भी स्पाइक हो जाता है, तुरंत बेच के निकल जाओ। ठीक है, 100 में से 90 केस में वो टॉप होगा उस मार्केट का। और जितने भी यूट्यूबर और ट्विटर वाले हैं ये आपको बोलेंगे इट्स अ बिग ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स, उनकी बात सुनोगे तो फंसते रहोगे। ये चीज़ मैं पिछले 50 साल से बोल रहा हूँ।
लर्न दीज बेसिक थिंग्स यार, ये सब सीखो, ठीक है। सो फिलहाल ये स्टॉक अभी तो ये डाउन ट्रेंड में है, कोई भी इसमें बाइंग साइड की सलाह नहीं है। बीच में इट हैड कम हियर, लुक एट दी रेजिस्टेंस, 65 डे पे रेजिस्टेंस ले रहा था। एल एन टी, एल लार्सन एंड टू ब्रो, सी एल इज अ गुड स्टॉक। अभी लास्ट टाइम मैंने वार्निंग दिया था कि बाय मत करना, आने दो नीचे इसे 1700 के आसपास, एंड बहुत ही अच्छी वो सलाह थी बिकॉज इट वेंट ऑल द वे टू 1640। सो राइट नाउ वी आर एट अ गुड सपोर्ट, आई लाइक दिस स्टॉक एंड आई रियली लाइक एवरीथिंग, बट अभी कोई ट्रेड नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई रिवर्सल नहीं है, ठीक है। रिवर्सल का क्या मतलब होता है? सी, आप लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर चला गया तो रिवर्सल है, नहीं, स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। ओके, सो राइट नाउ इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, नो लॉन्ग्स फ्रॉम माय साइड, एंड वी विल सी इन कमिंग डेज इफ इट स्टार्ट्स अ गुड रिवर्सल, देन 100% बाय करेंगे और बहुत बड़े टारगेट के लिए बाय करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डीएलएफ ऑलरेडी हो चुका है भाई, आप कौन सी दुनिया में हो। डीएलएफ ऑलरेडी 400 से 385, देन अगेन शॉर्ट, डीएलएफ में 3 बार शॉर्ट हो चुका है उसी रेंज में। ये भी आप सीखो कि जब एक क्रेडिबल ट्रेड सेटअप मिल जाता है ना, तो लर्न टू चर्न दैट ट्रेड। सो डीएलएफ यहाँ पे शॉर्ट था, एग्जैक्ट टॉप एंड वंडरफुल मूव, बहुत ही बढ़िया इसमें मूव हो गया 40 पॉइंट का लगभग, ठीक है। अगर अभी शॉर्ट करोगे तो देखो बीच में फंस जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, अंडरस्टैंडिंग। सो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। खैर, अगर आपने शॉर्ट किया है तो कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 390, ठीक है, दैट्स इट। और नीचे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय माता दी। श्याम मेटालिक्स, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, ओके। श्याम मेटालिक्स इस समय देखिए पूरी तरीके से बेयर कैंप में है, बेरिश है, एंड स्टॉक कैन फॉल एनी टाइम टिल 300 लेवल। यूपीएल, सो यूपीएल आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, लेट मी सी, नो, मैंने हेवल्स लिया था, ओके। सो यूपीएल देखो एग्जिट है बॉस, अगेन रेजिस्टेंस जोन है, एग्जिट, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एम, महिंद्रा एंड महिंद्रा एम, ओके। एम इज अप्रोचिंग, अच्छा, एम से याद आया कि इस वीक कौन सा सेक्टर मैंने कहा था सबसे बेस्ट सेटअप होगा, क्या किसी को याद है? कौन सा सेक्टर बताया था कि इस हफ्ते का बेस्ट सेक्टर कौन सा बताया था मैंने? लेट मी सी। एज फार एज एम इज कंसर्न, वॉच आउट फॉर ट्रबल जोन 970 के आसपास निकल जाना, प्रॉफिट बुक करके ऊपर जाने देना, ठीक है। या तो ट्रेल करो, ट्रेलिंग के चक्कर में आप नहीं मैनेज कर पाओगे, सो जस्ट ट्राई टू लॉक इन प्रॉफिट्स नियर 970। ऑटोज, यस, देखो, ऑटो ऑटो ऑटो, थैंक यू सो मच। जो लोग रेगुलर देखते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। सो ऑटो में आप देख लो, कमाल है, सारे ऑटो जो हैं ये ऊपर जा रहे हैं, करेक्ट। सो सेक्टर्स पहचानो, देखो यही तो बात है, मार्केट जब बेयर मार्केट में जाता है ना, तो सेक्टर्स अगर हमारे ग्रिप में आ गए तो हम जो है उस मार्केट को जीत लेते हैं। तो जैसे जब से ये 6 महीने से चालू हुआ है, सबसे पहले एक आखिरी आईटी सेक्टर में रैली होनी थी, याद है, जिसमें इन्फोसिस डबल टॉप बनाया, टीसीएस ने एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बनाया, एचसीएल गया था। सो दैट आईटी रैली गॉट ओवर, फिर हमने वॉर्न किया आईटी में से निकल जाओ, एंड आईटी क्रैश्ड। पीएसयू बैंक्स में एक रैली कराई, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये ऑटोज में चल रहा है, मेटल्स में हुआ, करेक्ट, फिर प्राइवेट बैंक्स में एक बार हुआ। सो ये सेक्टर्स की चाल को समझिए। एज फार एज एम इज कंसर्न, यस, वॉच आउट फॉर 970 to 1000 समवेयर ओवर हियर, डोंट टेक चांस, ट्राई टू लिक्विडेट, ट्राई टू बुक, ओके। इट्स अ फैंटास्टिक चार्ट स्ट्रक्चर, ऐसे एक चार्ट को ड्रॉ कर लो, यहाँ जब आएगा तो अगली बार कैश में इन्वेस्ट कर दो, मोटा मोटा 5-10%, 8% के कैश में कह रहा हूँ, एफ नहीं, एक स्टॉप लॉस लेके, एंड टिल दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज वैलिड, आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे स्विंग्स मिलेंगे, ओके। लेट मी टेक नेक्स्ट टॉक। ऑटो सेक्टर इज बेस्ट, करेक्ट, सबने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। एल एन टी फाइनेंस की बात करते हैं, एल एन टी फाइनेंस। सो ओके, इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको। नंबर वन, स्टार्टिंग विथ दैट इट्स अ वेरी डाइसी स्टॉक बॉक्स, ठीक है। एंड नंबर टू, दिस टाइम इफ इट डजंट ब्रेक 100 रुपीज लेवल, देन stock is going all the way like DHFL and Yes Bank. So please be careful. It is trading at 90 rupees.
इट हैज ट्राइड 2 स्पाइक्स, ठीक है, 100 रुपए के आसपास जो है निकल जाना। अभी 78 रुपीज पे जो है आई थिंक यू कैन ट्रेल, 78 रुपीज पे यू कैन ट्रेल। कीप यू नो कीप इन माइंड द 100 रुपीज लेवल, 100 और मे बी 102 सॉर्ट ऑफ लेवल, ठीक है। ये जोन है बेसिकली 100 रुपए से लेके 102 रुपए तक, 108 रुपए तक, ठीक है, समवेयर। बी केयरफुल। निफ्टी बीज क्या है, ओके अब वो सब चीज़ मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उसके लिए बहुत सारे फालतू यूट्यूबर्स ने बना के रखे हैं वीडियोस, आप देखिए, गूगल करो ना, यूट्यूब करो निफ्टी बीज क्या है, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सी हमारा काम है एनालिसिस करना, ठीक है, तो हम वो करते हैं, बाकियों का काम है टाइम पास करना। सो टाइम पास वीडियोस वहां पे प्लीज देखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉल, सी मैकडॉल इज बेरिश राइट नाउ, इट्स गोइंग टुवर्ड्स 800 लेवल, ओके, so somewhere here, let it come, probably here there can be good opportunity for a long trade, right now it's bearish, ये अच्छे लेवल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी तो बेरिश है, अगर शॉर्ट रखा है तो 891 शुड बी योर स्टॉप लॉस, ओके, एंड कवर नियर 800 810 sort of a level, and keep this chart in your mind because I think it will become a great chart, okay। ठीक है, थोड़ी दिन बाद वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं इसको ग्रेट चार्ट कह रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, आने दो अभी थोड़ा नीचे, बट इन फ्यूचर लाइक फ्रॉम नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स परस्पेक्टिव दिस कैन टर्न आउट टू बी वेरी गुड चार्ट, सो कीप दिस थिंग नोटेड। LIC हाउसिंग फाइनेंस, दोस्तों लाइक का बटन नहीं दब रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओके, देखो वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये LIC जो है हमेशा 400 पे अटक जाता है, सो अगेन इट इज ट्रेडिंग एट आई थिंक 382 रुपीज, सो यू नो अगेन 400 के पहले ही एक बार इसे एग्जिट हम करेंगे, समवेयर हियर, समवेयर हियर, सो इट्स ऑल ट्रबल एरिया, इट्स ऑल ट्रबल एरिया, सो 400 के नीचे जहां भी ठीक लगे एक बार एग्जिट करेंगे, एंड वंस इट इट हैज ब्रोकन ऑल दीज, जब ये ब्रेक करेगा ना तो फिर हमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, एंड पॉसिबली सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर इज पॉसिबल और नॉट, फिर हम तब देखेंगे। साउथ वेस्ट पिनाकल आज भी 6% ऊपर है, शाबाश। साउथ वेस्ट पिनाकल, ओके, अच्छा, साउथ वेस्ट पिनाकल में जो मैंने बताया था ना कि बहुत बढ़िया चार्ट है, सेम रीजन है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, ठीक है, सेम रीजन है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। तो अब दोनों चार्ट को कंपेयर करो एंड लेट अस सी इफ यू कैन फिगर आउट कि क्यों वो बेटर है, ठीक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बेरिश है, 380 390 के लेवल्स पे आ सकता है। अर्नव फैशन, ठीक है, अक्षय कुमार के बेटे का नाम है क्या, अर्नव फैशन लिमिटेड, मान्यवर, अर्नव फैशन, ओके, पता नहीं बॉस, सॉरी, नो आइडिया, इट्स अ BSc काउंटर ऑल मैनिपुलेशन, सो ग्लेन मार्क, ग्लेन मार्क, ग्लेन मार्क फार्मा, राइट, ओके, let me see, so Glenmark Pharma trading below 200-day moving average since last almost 1 year, so bearish counter hai. It's a bearish counter since so many months, no support, nothing, earnings aane wala hai, be careful, any up move till 465 you can definitely exit, these are all resistances now, okay, and this is the channel support, so possibly it can succumb to pressure during the earnings, so keep an eye, watchful रहना है यहाँ पे, one triangle breakdown हो चुका है, and possibly यहाँ पे maybe channel or something like that and then crack, so याद रखिएगा इसमें 465 470 बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही सॉलिड ये जोन है बॉस, 465 से 470 475, इसका आप फोटो भी ले सकते हैं, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता ना, वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी, and left hand side I can see there is no support till 400 maybe 370, so be very careful, bearish counter hai. Hero Moto Corp, Hero Moto, let me see, Hero Moto,
सो हीरो मोटो वैसे तो बेरिश काउंटर है मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। राइट नाउ इसमें एक स्पाइक आया है। सो मेरा कोई व्यू नहीं है बॉस इस स्टॉक पे। द स्टॉक इज बेरिश, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मे बी एक और स्पाइक अप, वॉट एवर इट इज, इट्स अ सेल, इट्स अ एग्जिट। ठीक है। हीरो मोटो क्रैश होने के पहले ही मैंने इस पे चेतावनी दी थी, बाय द वे, अगर किसी को याद हो तो। इस पे यहाँ पे चेतावनी दी थी मैंने। ठीक है। 2800 के लेवल पे 200 डे वीकली मूविंग एवरेज था, रेजिस्टेंस था, एंड स्लम्प्ड। राइट नाउ अगर बाउंस आता है तो मैं समझता हूँ मे बी अनदर 100 पॉइंट्स कैन कम, बट इट्स अ एग्जिट। ये स्टॉक पूरी तरीके से बेयर्स के ग्रिप में है। एमी ऑर्गेनिक, एमी ऑर्गेनिक, एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। Okay, so it's a new stock basically. See, it's a new stock, so there's no data as such, so can't say much. Maybe it can go till 1175. Maybe this flag gets a breakout. So this was your first stage. This is second. Maybe it's all maybe 1100 से 75 and 1275 somewhere over here. There's no data as such to analyze. At best, what you can do is you can trail to 920 rupees, hope for the best, and try to book out near 1200 levels. That's what you can do. Adani rocks, correct. Let's see Adani port. So अदानी ग्रुप के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई थी, खास तौर पे श्री 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 गौतम अदानी के बारे में, सब सच हो चुके हैं। ठीक है ना। फाइनली ब्रेक। कल किसी ने मैसेज किया था कि उन्होंने बहुत ऊपर बाई कर लिया था। सो आई टोल्ड हिम कि अदानी है तो चलो थोड़ा बच जाओगे, बट नेक्स्ट टाइम वो काम मत करना। ठीक है। सो अडानी पोर्ट्स मार्चिंग टुवर्ड्स 1000, एक्सपेक्टेशन है 1000 का। फाइनली a stock that was under consolidation for almost what 12-month period, right? So the 12-month range has given a breakout. So very easily 1000 rupees and 1100 should be your target. So this was the range. The range has given a breakout, so possibly this is the target. Yes, it may not come directly, maybe it can come, who knows, it's Adani, but ठीक है। सो ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ही तेजी का काउंटर है। इस स्टॉक को मैंने ना एकदम वैल्यू पे बाय कराया था। ठीक है। सी दिस इज माय स्पेशलिटी टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे कम से कम 50 बार बता चुका हूँ मैं। फैंटेस्टिक। ऑल राइट, अदानी विल्मर देखो, AWL 804 पे लॉक हुआ है ना। 840 का टारगेट मैंने दिया था 640 पे। सो अगेन कल वापस एक ऊपर अपर से कल 850 हो जाएगा इसमें। रुचि सोया पे कुछ नहीं है बॉस। नेक्स्ट है मदरसन सूमी सिस्टम्स। मदर सूमी तो बेरिश है बॉस। ठीक है। अधिक से अधिक 155, अधिक से अधिक 155। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, ऐसा नाम कोई क्यों रखेगा जब तक कि वो डीप स्टेट का आदमी ना हो। सो ब्लैक रोज जो है, कोई व्यू नहीं है इसमें, नथिंग। द चार्ट इज वेरी मिक्स्ड अप। एक अच्छी चीज इसमें ये दिख रही है कि स्टॉक में जो है ना थोड़ा सा कॉइलिंग है। कॉइलिंग अगर जहां रहता है तो मैं ये कह देता हूं कि आप इसको ट्रेल करो, बिकॉज इट हैज अ चांस ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। ठीक है। सो लेट्स गो विद दैट पॉजिटिविटी विच इज देयर ऑन द चार्ट। what you can do is you can trail to say 175 rupees, hope for the best. There is coiling, so what can happen is it can come down to say 194, 193, and then spike up in few days to reach the 250, 260 level. Over there you should definitely book out. So this is, I think, the story in on black rose. ठीक है, something like this. Fine. So इसका फोटो ले सकते हैं and you can maybe benefit from this. Okay. शुभादीप घोष, आपने 786 स्टॉक्स पूछ लिए हैं। प्लीज डोंट स्पैम और एल्स यू विल बी ब्लॉक्ड।
नेटवर्क 18, नेटवर्क 18 की बात करें तो मीडिया टाइप ऑफ काउंटर है, एंड मे बी इलॉन मस्क के न्यूज़ के बाद देखो स्पाइक आना ही था। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना दोस्त, ठीक है। हर देश में इलॉन मस्क नहीं होता। सो वाई आई एम सेइंग इलॉन मस्क फॉर नेटवर्क 18, बिकॉज जनरली क्या होता है कि सेक्टर्स इक्विटीज में क्या है, थीम्स पे चलता है बाजार। सो मे बी वॉल्यूम्स, देखो वॉल्यूम्स आ गए, क्यों वॉल्यूम्स आए, बिकॉज इलॉन मस्क का न्यूज़ की वजह से। सो कीप एन आई थिंक इट कैन गो टिल 136। सो अगर आपकी नीचे की बाइंग है तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। आई थिंक फॉर ट्रेलिंग आई विल जस्ट प्रेजेंट माई केस फॉर ट्रेलिंग। आप देखिए आपको सूट करता है तो करो। फॉर ट्रेलिंग 95 रुपीज़ आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स टुमारो थोड़ा और ऊपर जाए, जैसे 5-10 रुपया, तो आप बुक आउट भी कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन यू कैन अगेन बाय ऑन डिप एंड कंटिन्यू दिस अप मूव। नो harm in profit booking. In fact you should profit book whenever there is a new swing high, ठीक है, that's a rule. ओके, मोटिवेशनल गुरु भाई क्या बोल रहे हैं कि रेस गोइंग ऑन बिटवीन अडानी अंबानी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज बेरिश, ठीक है। सो वो इज बेरिश राइट नाउ। सेम एक्सप्लेनेशन है जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, 780 के नीचे बेरिश, और 707 वगैरह का लेवल जो है इसमें आना चाहिए। 727 इज द फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन 707, ठीक है। सो ये चीज हो चुका है। सीमेंस तो आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन लिटिल वाइल बैक। सीमेंस, सीमेंस इंडिया, लेट मी जस्ट, हाँ सीमेंस अभी तो एक्सप्लेन किया था मैंने। सीमेंस यस, ट्रेल टू 2175। you can rewind and you can watch the explanation why I'm giving this. एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में कुछ खास नहीं है यार। 810 का रेजिस्टेंस था, फिर वहां से 20-30 रुपए गिरने की संभावना थी। आई थिंक वो गिरा भी है, या आई थिंक इट, या इट हैज फॉलन, राइट। सो हॉच पॉच है, लुक एट दिस चार्ट, इट्स वेरी हॉच पॉच। सी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक्सिस बैंक जो है ना, इसमें बहुत बड़ी ट्रेड आने वाली है। थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा रुको, 1 महीना। इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी ट्रेड दूंगा, बहुत बड़ी ट्रेड। सिर्फ एक्सिस बैंक की नहीं है, 2-4 स्टॉक्स मेरे पास हैं, रडार पे आ चुके हैं। लेट अस वेट फॉर एटलीस्ट 1 वीक टाइम। नाउ एज फार एज एक्सिस बैंक इज कंसर्न, थोड़ा सा और डिक्लाइन आना चाहिए, 755। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 730 तक भी आना चाहिए, ठीक है। बट नीचे नीचे में गलती से भी शॉर्ट मत करना बॉस। ये 810 वाला रेजिस्टेंस काफी फेयर इनफ था, ओके, एंड इट हैज वर्क दिस टाइम आल्सो। so try to book your profits, but don't short at lower levels. ये हो चुका है। एमआरएफ तो बेरिश है, एमआरएफ बेरिश है। बालकृष्णा, ओके, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा बहुत ही वियर्ड अकाउंटर है, क्योंकि ये स्टॉक को खेलना बहुत टफ है बॉस, बिकॉज इट when it starts to move in a trending fashion it doesn't stop, okay, on both the side, and when it becomes choppy it's like very very choppy, ठीक है। सो इस स्टॉक में हम सिर्फ बड़े लेवल्स पे ही काम करते हैं, सो एंड दैट टू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट इट takes out the noise of the daily chart and it presents you the proper level. So right now I think the stock has a very big resistance at 2200, and unless it crosses these areas I think it can fall back, okay. So be very careful, it's a nasty stock, it's not a easy one to play. So I think till it doesn't cross this 2200 level, 2250, ये एक zone है, okay, it can fall all the way back to 1700 level. So please be careful, it's a very dangerous stock. All right, अच्छा शॉर्टिंग के लिए पूछा था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, हाँ ठीक है, शॉर्टिंग के लिए ठीक है, यू शुड ट्राई शॉर्टिंग, बट विथ टाइट स्टॉप लॉस, हाँ, क्योंकि इट्स नॉट ए इजी स्टॉक टू ट्रेड। चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर्स, so the fertilizer theme is working globally, all the fertilizer stocks, they
शॉर्ट अप रिसेंटली फ्यू ऑफ देम। सो चंबल आप देखिए कि बहुत ही ऑब्वियस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप है। सो इसमें अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको निकल जाना चाहिए था। इनफैक्ट एनी मूव दैट कम्स टुवर्ड्स 490 इट्स एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। सो एग्जिट। डेल्टा कॉर्प, एक्सेलेंट। क्या कहा था डेल्टा कॉर्प के बारे में? डेल्टा कॉर्प अभी आई थिंक 7 दिन हुए होंगे, समवेयर हियर 307 पे था मेरे ख्याल से। तो डेल्टा कॉर्प की कहानी क्या है पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लास्ट ईयर हर बार मैंने डेल्टा कॉर्प यहाँ पे बाय कराया, ठीक है। 3 से 4 बार अपॉर्चुनिटीज आई थी एंड दीज वर द टारगेट्स। एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि डेल्टा कॉर्प जो है ब्रेकआउट देगा अगले राउंड में, एंड समवेयर अबाउट 300, 320, 340, 350 इट विल कम। सो यहाँ पे आता है, और इसके बाद जैसे ही गिरना शुरू किया मैंने खाली करवा दिया, ठीक है। एंड अगेन बैक टू पेविलियन। सो व्हाट डज इट मीन? अ बिग रेंज, अ शॉर्ट लिव्ड ब्रेकआउट कमिंग ऑल द वे डाउन। इसका मतलब क्या है? यानी आने वाले महीनों में क्या हो सकता है? दिस स्टॉक हैज पीक्ड, ठीक है। बस इसका ये मतलब है। बहुत ही बढ़िया ये था, और अगेन वो सीजनैलिटी के साथ बहुत अच्छा जेल किया, यू नो। लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट्स वगैरह थे इसके। KRBL, KRBL, KRBL लिमिटेड दोस्तों, वी आर अप्रोचिंग 55 मिनट्स। सो KRBL इज गोइंग गुड, ओके है, बट अभी 270 पे एक रेजिस्टेंस है। सो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है 270, 275, यस, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है डेफिनेटली। KRBL हो चुका है। कावेरी सीड, एक मैं ले लेता हूँ कावेरी सीड। कुछ लोग हैं ना वो 50 क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऐसा मत करो। 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, बाकी बाकी लोगों को भी मौका दो ना। सो कावेरी सीड दोस्त बेरिश है इस समय, और ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि और गिरना चाहिए 10%, 20% कम से कम। BHEL, लेट मी टेक दिस स्टॉक। इस स्टॉक पे मैंने कहा था कि इसको जो है बाय करके रखना चाहिए अराउंड 53। लास्ट टाइम इसको मैंने सजेस्ट किया था, फिर इसमें एक स्पॉट आया, 60 रुपीज गया, एंड अगेन इट इज फॉलन। सो आई थिंक स्टिल आई विल गो विद द सेम व्यू कि आप अगर इसको 50-52 पे बाई किया है तो ठीक है, इसको रखो आप थोड़ा 44 रुपए के स्टॉप लॉस से, लेट इट होल्ड। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जब 60 को क्रॉस करेगा अगले राउंड में, दिस स्टॉक कैन डू रियली वेरी नाइस अप मूव, एंड हु नोज इट कैन गिव अ लार्ज ब्रेकआउट ऑल्सो। सो फॉर द टाइम बिंग आपको ये स्टॉप लॉस अगर जमता है तो आप इसे रख सकते हैं, अगर ये नहीं जम रहा है तो एक बार निकल जाओ, एंड आने वाले दिनों में हम देखेंगे। छोटे वैल्यू का स्टॉक है, so ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो द आइडिया इज दैट फर्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट स्टार्टेड टू हैपन, ये सक्सीड नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि सेकेंड राउंड में सक्सीड अगर हो गया तो बहुत बढ़िया इसका एक ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। ओके, 2 more questions. कावेरी सीड इज बेरिश। बाटा इंडिया चेक करते हैं। बाटा इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चॉपीनेस है इस स्टॉक में, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लास्ट टाइम इसको यहाँ पे बाय भी कराया था पैनिक में। सो बाटा इंडिया राइट नाउ देखो, बाटा इंडिया में 2040 का रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, समवेयर हियर 2040 के आसपास, इस पे ध्यान देना है ना। बाटा इंडिया की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बन रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ओवरऑल देखो, ये जो मैं लॉन्ग टर्म काउंटर बताता हूँ ना, उसकी एक स्पेशलिटी होती है जो मैं रिवील नहीं करूंगा, वो आपको जो है चार्ट्स में दिखाई देगी। वो रेसिपी, वो इंग्रेडिएंट इस समय बाटा के चार्ट में है। यानी बाटा इंडिया का जो ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से करेक्शन है, इट इज Reliance in the making. Okay, so any dip that comes, बाटा इंडिया में 1700 के आसपास, 1800 के आसपास, थोड़ा थोड़ा कैश में इसको आप जो है उठा सकते हैं, इसको रखो आप। भविष्य में ये स्टॉक जो है ना, यू विल बी सरप्राइज्ड, ये स्टॉक आपको 4000 रुपए पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, एक स्टॉक अभी तक जो SBI कार्ड, ये पेंडिंग था, ये काफ़ी पुराना क्वेरी है। सो आई विल टेक दिस SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, एंड स्टॉक बेरिश है जस्ट लाइक द लास्ट टाइम।
एनी मूव दैट कम्स टिल 862 इज अ अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। यही चीज मैंने लास्ट टाइम भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। टाइटन, टाइटन हैज क्या मैसेज है, टाइटन हैज सेम ब्रेकआउट फेलियर। हाँ, टाइटन के चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, सो राइट नाउ टाइटन जो है ये एक ऑब्वियस एक अच्छा मूव यहाँ पे दे रहा है, बट जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दिया, आई विल गो विद दैट, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज दैट आई आई बिलीव ये जो स्लोप ऑफ होप है, यहाँ से एक जो मूव आएगा, पॉसिबली इट शुड टर्मिनेट रैंडमली एंड टाइटन शुड फॉल। So once I see this move happening, ठीक है, coming coming at these levels, then probably I will be interested in Titan. Suppose ये नीचे नहीं आता, ये ऊपर ऊपर ही चलते जाता है, तो I would like to see how it is like negotiating with these resistances, and then thereafter in future मैं इसमें जो है ट्रेड लूंगा। तो घूम फिर के मुझे लेवल्स वहीं मिलेंगे, इवन इफ द अदर व्यू इज हैपनिंग, लेवल्स मुझे घूम फिर के वहीं मिलेंगे, ओके। बट by that time the structure would have become a matured chart structure, and that can be relied upon, that can be banked upon. So इसलिए हमें भविष्य में ट्रेड लेने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। अभी क्या है, इट्स लाइक 50-50, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। बट विश यू ऑल द बेस्ट। सो ये टाइटन का एक्सप्लेनेशन था। आइशर मोटर्स अगेन फैंटेस्टिक चार्ट स्ट्रक्चर। देखो, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो लाइव सेशन को मनोरंजन नहीं एक ट्रेनिंग के तौर पे लेते हैं, दे नोट एवरीथिंग। नाउ लुक एट दिस आइशर मोटर, ठीक है। आइशर मोटर अगेन इट्स अंडर लॉन्ग टर्म, आई वोंट डिस्क्लोज वेदर इट इज रीअक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो इस समय ये बंदा ऊपर जाने के लिए बेताब है, कम से कम लाइक 100-150 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही एक बढ़िया चीज इसमें हो रहा है। Okay, one stock I can take, Jayant Agro. जयंत एग्रो, ओके। सो एग्रो बेस्ड है, प्रीवियस हाइस था इसका 330 रुपए के आसपास। जैसे ही ये न्यू हाई की तरफ जाता है, इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एग्रो थीम है इस समय, फूड इन्फ्लेशन है, फर्टिलाइजर, एग्रो, ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग गुड। इस वजह से ये स्टॉक को एक एक बेनिफिट मिल रहा है। अदरवाइज ये स्टॉक में ना दम नहीं है, ये स्टॉक कभी भी 150 रुपए पे आ सकता है। सो फिलहाल राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट वाला सिचुएशन है, तो यू कैन टेक एडवांटेज, यू कैन बुक प्रॉफिट नियर 330 शॉर्ट ऑफ अ लेवल, ठीक है। एच डी एफ सी ए एम सी, एच डी एफ सी ए एम सी तो यार पूरा ग्रुप ही बेरिश है ना, एच डी एफ सी बैंक लाइफ एंड ऑल दी सी पूरा बेरिश है। अभी डबल बॉटम से बाउंस दे रहा है, अगर यहाँ कहीं बाय किया है आपने, ठीक है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। प्रीवियस मेजर बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। इफ इट वर्क्स तो बहुत ही शानदार आपको 2500 तक की रैली मिल जाएगी, डबल बॉटम डब्ल्यू शेप मूव, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो लेट्स वाइंड अप, आई थिंक 1 घंटा क्रॉस हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें भी जुड़ना है, दिस इज़ योर लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जो है व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं, एंड यू विल बी एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज सेशन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑल्सो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।